اور اب خبروں کی تفصیل۔ مہاراشٹر اسمبلی انتخابات کا بگل جلد ہی بجنے والا ہے۔ اس کے پیش نظر سیاسی جماعتوں کے درمیان اتحاد کی کوششیں تیز ہو گئی ہیں۔ مہاراشٹر اسمبلی کی 288 اسمبلی نشستوں کے لیے الیکشن کمیشن جلد اعلان کر سکتا ہے، اور اس سب کے بیچ کانگریس NCP نے نشستوں کا بٹوارا کرتے ہوئے 125 نشستوں پر اسمبلی انتخاب لڑنے پر اتفاق کر لیا ہے، جبکہ 38 سیٹیں دیگر اتحادی جماعتوں کے لیے چھوڑے جانے کا بھی اعلان کیا ہے۔ ان 38 سیٹوں میں 7 سیٹیں سماجوادی پارٹی کے حصے میں آئیں گی۔ دوسری جانب شیو سینا BJP میں ابھی تک اتحاد پر مہر نہیں لگ پائی ہے۔ BJP شیو سینا کو 120 سیٹیں دینے کے حق میں ہے، جبکہ شیو سینا 135 سیٹوں کا مطالبہ کر رہی ہے۔ NCP کے ساتھ تو 125 جگہ کا طے ہوا ہے۔ آگاڑی کی جو بھائی گھٹک پکش ہمارے ہیں ان کو بھی ساتھ میں لینے کا طے ہوا ہے۔ ان کو جو بھی جگہ ہم چھوڑیں گے تو دونوں پارٹی آدھی چھوڑیں گے اس میں جگہ ان کے لیے بھی۔ اور سماجوادی پارٹی، ہمارا کمیونسٹ پارٹی ہو، سیکپ پارٹی ہے، ہمارے راجو شیٹی جی کی پارٹی ہے جو شیتکری کامگار پارٹی ہے، اور ادر باقی بھی پارٹیز ہیں جو آگاڑی میں جڑنا چاہتی ہیں، ان کے سب کے ساتھ چرچا چل رہی ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ 1-2 دن کے اندر ہم فائنل کر سکیں گے۔ گٹھبندھن میں نے صرف 7 سیٹ مانگی تھی اور 4 سیٹ کا ملا کہ ہم فرینڈلی فائٹ لڑ رہے ہیں، اور بھائی اللہ تو میں جیت رہا ہوں، مجھے پوری امید ہے، کیونکہ میرا نگر سے بہت ہوشیار ہے وہاں پہ اور کام اچھا کر رہا ہے اور پوری جنتا اس کے ساتھ میں ہے۔ اب اس کے بعد مانکو شیواجی نگر میں لڑ رہا ہوں الیکشن وہاں سے، میں پہلے 2 بار سے وہاں MLA ہوں۔ بھیونڈی پورو جہاں سے میں چن کے آ چکا تھا اور ہم ہمیشہ آگے رہے وہاں پر، اور اس کا اورنگ آباد پورو، 4 سیٹوں پہ ہماری بات ہو گئی۔ گووند پانسرے قتل معاملے کی تفتیش کرنے والی SIT کی سست روی کی بنا پر بامبے ہائی کورٹ نے پھر ایک مرتبہ SIT کو پھٹکار لگائی ہے۔ ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ افسران صرف دوسری تفتیشی ایجنسیوں کی تحقیقات پر منحصر نہ رہیں، بلکہ خود کی تحقیقات کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ ہائی کورٹ نے اس طرح کے الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے تحقیق کرنے والے پولیس افسران کو آڑے ہاتھوں لیا۔ سرکاری وکیل نے عدالت کے سامنے وضاحت پیش کرتے ہوئے کہا کہ کولہاپور میں سیلابی صورتحال کی وجہ سے افسران راحت رسانی کے کام میں جٹے رہے، جس کی وجہ سے تحقیقات آگے نہیں بڑھ سکتی۔ سرکاری وکیل نے کہا کہ ڈاکٹر نرین دابولکر اور کلبرگی قتل معاملے میں گرفتار افراد سے پانسرے قتل معاملے کی کچھ خفیہ جانکاری مل سکتی ہے، کیا اس کی بھی تفتیش کی جا رہی ہے؟ NRC، موب لنچنگ، UAPA اور نفرت کی سیاست اس ملک کا شیرازہ بکھیر دیں گی۔ اس ملک میں جمہوری اقدار کا تحفظ صرف مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں، بلکہ تمام باشندوں کو متحد ہو کر ملک کو بچانا ہی ہوگا۔ اور ان تمام خیالات کا اظہار آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے سیکرٹری مولانا عمران محفوظ رحمانی نے کیا۔ وہ اورنگ آباد میں کل جماعتی فیڈریشن مسلم نمائندہ کونسل کے آل مہاراشٹر نمائندہ اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ اس پروگرام میں ملک کے مختلف گوشوں سے پہنچے اکابرین ملت نے شرکت کی۔ خاص رپورٹ۔ 22 جماعتوں کی نمائندہ فیڈریشن مسلم نمائندہ کونسل کے بینر تلے اورنگ آباد میں آل مہاراشٹر نمائندہ اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں ملک کے موجودہ حالات اور مسلمانوں کو درپیش مسائل و چیلنجز کا تفصیلی جائزہ لیا گیا، تجاویز طلب کی گئیں اور مستقبل کا خاکہ بھی کھینچا گیا۔ اس اجلاس میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے اراکین نے ملک بھر سے پہنچے مندوبین سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ اکابرین ملت نے موجودہ حکومت کی پالیسیوں پر اپنے انداز میں روشنی ڈالی۔ ہمارا بنیادی سوال ان تمام وزیروں سے ہے جو پچھلی گورنمنٹ میں تھے، جو اس گورنمنٹ میں ہیں، جنہوں نے یہ بیانات دیے تھے کہ تقریباً 1 کروڑ 20 لاکھ مسلمان گھسپیٹھیے ہیں، یا بنگلہ دیش میں اتنے، یا آسام میں بنگلہ دیش سے اتنے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ صورتحال جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، جو بیانات تھے وہ سب ہوا میں اڑ گئے ہیں۔ ہم مسلمانوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے کاغذات کی تیاری ابھی سے شروع کریں۔ گورنمنٹ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی بھی حرکت ملک کے لیے مناسب نہیں ہوگی۔ موب لنچنگ جو ہے وہ ایک موب لنچنگ نہیں ہے، 100% کانسپریسی اینڈ پولیٹیکل مرڈر ہے، اور ایک ایسا پولیٹیکل مرڈر کہ جس کی انویسٹیگیشنز کو ڈیمیج کر دیا گیا،
اور پہلو خان مرے ہیں مگر اس کا کوئی قاتل نہیں ہے. تبریز انصاری مرے ہیں مگر اس کا مرڈر نہیں ہوا ہے. علماء اکرام نے ملک کی موجودہ صورتحال پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے حکومت کو انتباہ دیا کہ اقلیتوں کے بنیادی حقوق سلب کرنے کی پالیسی سے باز آئے. ساتھ ہی مسلمانوں سے اپیل کی گئی کہ نکاح، طلاق اور وراثت کے معاملات میں دارالقضاء اور شرعی پنچایتوں سے رجوع کریں. مسلم نمائندہ کونسل ہو یا آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہو، تمام مسلم تنظیموں کا یہ احساس ہے کہ دیش کو صحیح سمت میں لے جانے کے لیے تمام ذاتیوں، تمام برادری، تمام دھرم، تمام مذاہب کے لوگوں کو آگے آنا چاہیے. تعلیم کے بھگوا کرن UAPA جیسے قانون کو دستوری روح کے خلاف قرار دیا گیا. اس موقع پر مسلمانوں کو تلقین کی گئی کہ وہ ہر حال میں صراط مستقیم پر گامزن رہیں، حالات بدلنے میں دیر نہیں لگتی. اورنگ آباد سے اظہر الدین کی رپورٹ. اکولا سے خبر ہے جہاں کی تلہارا میں وان ڈیم کا پانی کھیتوں کے لیے فراہم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کسانوں نے جم کر احتجاج کیا. بیل گاڑیوں کے ساتھ کسانوں نے پورے شہر میں باقاعدہ ریلی نکالی اور انتظامیہ کو اپنا فیصلہ تبدیل کرنے کی مانگ کی. اکولا شہر کو وان ڈیم سے پانی مہیا کیا جاتا ہے، تاہم بڑھتی آبادی اور پانی کی قلت کے پیش نظر اکولا کے لیے واری گاؤں میں موجود وان ڈیم سے بھی پانی حاصل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. शेतकऱ्यासाठी या सरकारनं जो पाणी आपल्या शेतकऱ्याचा हक्काचं हिरवून घेतलेला आहे त्याबद्दल आम्ही या शासनाचा निषेध करीत आहोत. आणि शेतकऱ्याच्या जीवावर उठलेलं हे सरकार यांना आम्ही कदापि हे आमच्यावर झालेला अन्याय सहन करू शकत नाही. वेळ पडली तर आम्ही वान प्रकल्पाच्या धरणावर जाऊन तिथं जलसमाधी करण्याचा निर्धार केला आहे. सर्व शेतकरी संग्रामपूर तालुका या तेलारा तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या सोबत आणि पाठीशी आहे. मुमरा में तबरेज़ अंसारी के हक में एनसीपी के कारकुनों ने एहतजाज किया और खामोश धरना निकाला. मुमरा पुलिस स्टेशन के बाहर डॉक्टर अम्बेडकर के मुजस्मे के सामने मुंह पर काली पट्टियां बांधे मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि तबरेज़ का केस जग जाहिर है और उसे किस बेरहमी से मारा गया ये भी पता है. अदलिया को चाहिए कि इसकी खुसूसी जाँच की जाए और मुजरिमीन को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए. हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के कानून के ऊपर भरोसा रखते हुए हम यहाँ बैठे कि देश में न्याय जो है जात पात धर्म के ऊपर सबको न्याय मिलना चाहिए. अगर ऐसा ना हो कि दूसरे कई दुनिया में कई ऐसे देश है जहाँ लोग सुबह घर से निकलते और शाम में सुरक्षित अपने घर पे नहीं आ सकते. हिंदुस्तान का नाम ऐसे देशों में शामिल नहीं होना चाहिए. जो भी मॉब लिंचिंग के तहत उनको मार दिया गया था उनको उनके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाए, ऐसा उम्मीद हिंदुस्तान का एक एक नागरिक कर रहा है. लेकिन आज की ये गवर्नमेंट के अंदर ये कोई सुनवाई नहीं है. आज इनके परिवार के लोग, इनके वालिदैन भी इस बात के इंतज़ार में थे कि हमारे बच्चे को एक अच्छा इंसाफ मिलेगा, लेकिन ये इंसाफ नहीं मिला है. हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं उसकी सच्चाई बाहर आ जाए और सच ये है कि उसको सर पे मारने से हुआ है, सर पे मारने से मौत हो जाती है. तो एवरीथिंग इज हमारा जो ब्रेन है वो सब कुछ है और वहाँ पे उसको मार लगने से उसकी डेथ हुई है. मॉब लिंचिंग हुआ है उसके साथ में, हम उसके खिलाफ है. नांदेड़ में आशा वर्करों ने अपनी तनख्वाहों में इजाफे की मांग को लेकर एहतजाज किया. आशा वर्कर्स के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रही तंजीमों की जानिब से नांदेड़ में चक्का जाम आंदोलन किया गया. वाज़ेह रहे कि देही मुकामात पर तालीम और सेहत के शोबे में एजाज़ी तौर पर अपने खदमात अंजाम देने वाली ख़वातीन जिन्हें आशा वर्कर के नाम से मौसूम किया जाता है उन्हें हुकूमत की जानिब से मिलने वाला मुआवजा बहुत ही कम यानी सिर्फ 500 रुपये माहाना दिया जाता है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत से मसाइल का सामना है. मुजाहिरीन पर काबू पाने के लिए पुलिस ने ताकत का भी इस्तेमाल किया. चल रहा है 3 तारीख से हमारी मांग है जो सरकार ने घोषित किया है उनको 3 पट वार्ड देंगे. जो वार्ड देंगे उनके ऊपर साइन अभी तक नहीं किया था सरकार ने. मंत्री, अर्थ मंत्री और आरोग्य मंत्री, अभी ऐसा आया है कि वो अर्थ मंत्री, आरोग्य मंत्री इन्होंने साइन किया है. हमारी मांग है कि अभी आचार संहिता लगने वाली है, जल्द से जल्द वो जो GR है वो हमारे हाथ में पड़ना चाहिए. राष्ट्रीय हाईवे है हैदराबाद नागपुर, ये हमने रोक रखा है. यहाँ के पुलिस ने दड़पशाही और गुंडागर्दी करने की कोशिश की है, लेकिन हमारी ये जो आशा वर्कर है ये पीछे नहीं हटे. गुंडागर्दी की हमारी जो मांग है 3 पट GR लागू करना चाहिए और आचार संहिता से पहले. बहुजन क्रांति मोर्चे की जानिब से इन दिनों इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ
कौमी सतह पर मुहिम चलाई जा रही है। इसी मुहिम के तहत नांदेड़ में एक उमूमी इजलास मुनक्किद किया गया। जलसे में बहुजन क्रांति मोर्चे के कौमी सदर वामन मिश्राम ने शिरकत की। उन्होंने अपने खिताब में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में धांधली का इल्जाम लगाया, बल्कि इस मामले में इलेक्शन कमीशन के मुलविस होने की भी बात कही। जमा हो गया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में, वहां फिजिकल एविडेंस नहीं है। क्या है? संख्या। पहले बीजेपी के आदमी ने वोट डाला, संख्या 1 हो गई ईवीएम में। दूसरा पंजे वाले ने वोट डाला, संख्या आ गई 1। दूसरी ये एक संख्या पहली अंदर बीजेपी की है, दूसरी आई पंजा की। पंजे वाली संख्या ईवीएम मशीन के अंदर कमल के फूल में जाकर मिक्स हो सकती है, ट्रांसफर हो सकती है। क्यों? क्योंकि संख्या। मालेगांव शहर के प्रभाग में 46 लाख की लागत से सड़क की तामीर की गई थी। इस तामीर को अभी चंद ही रोज गुजरे थे कि रास्तों पर जगहों जगहों पर जानलेवा गड्ढे बन गए हैं। नाक़िस तामीरी काम के खिलाफ जनता दल सेकुलर के वर्करों ने सोंद गांव फाटे पर रास्ता रोको एहतजाज किया। कॉरपोरेशन और इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन ने इस सड़क की तामीर में बदउनवानी का भी इल्जाम लगाया। शरीफा, जिसे महाराष्ट्र में सीताफल कहा जाता है, इस फल की पैदावार में लगातार कमी देखी जा रही है। सीताफल की पैदावार बढ़ाने के लिए अमरावती में ज़रई तजुर्बेगाह का इफ्तिताह रियासत के वज़ीर ज़राअत अनिल बोंडे के हाथों अमल में आया। अनिल बोंडे ने सीताफल की पैदावार में इजाफे के लिए चलाई जा रही मुहिम को भी हरी झंडी दिखाई। मुंबई के जोगेश्वरी इलाके की फारूक हाई स्कूल की जदीद लवाजमात से लैस लाइब्रेरी का इफ्तिताह महाराष्ट्र के स्कूल एजुकेशन के वजीर आशीष शेल्लार के हाथों अमल में आया। वजीर बराए तालीम आशीष शेल्लार ने इस मौके पर कहा कि तलबा और तालिबात का अपनी मादरी ज़बान में तालीम हासिल करने के साथ साथ गैर मुल्की ज़बान को भी सीखें। इस लाइब्रेरी में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 20,000 से ज़्यादा किताबें मौजूद हैं। तलबा व तालिबात की सहूलत के लिए इदारे में कंप्यूटर लैब, साइंस लैब और मैथ्स लैब के साथ साथ आर्ट एंड क्राफ्ट का एक स्टूडियो भी मौजूद है। अपनी मातृभाषा को भी पढ़े और उसके साथ साथ दुनिया की जो आज की भाषा है, लैंग्वेज है, उसको भी पढ़े। मैं चाहता हूँ कि अपने स्कूल और भी तरक्की करे। आपको सरकार की ग्रांट मिली हुई है और आपने कुछ और डिमांड्स भी यहाँ पर रखी हुई है। मैं ये तो ज़रूर कहूँगा, जो मेमोरेंडम आपने दिया है वो इन बच्चों के भलाई के लिए है और स्टूडेंट सेंट्रिक जो भी चीज़ होगी वो किसी भी संस्था की हो, वो माइनॉरिटी हो या अदरवाइज हो, उन सबको समान तरीके का हक और समान तरीके का न्याय ही देना मेरा काम है और वो मैं जरूर दूंगा। इश्तियाल अंगेज और मुतनाज़ा बयानात के लिए मशहूर कर्नाटक के बीजेपी लीडर ईश्वरप्पा एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए। ईश्वरप्पा अब रियासती काबीना के वजीर भी हैं। बेंगलुरु में एक इजलास से खिताब के दौरान उन्होंने कह दिया कि जो मुसलमान वतन परस्त हैं वो बीजेपी को वोट देते हैं, जो पाकिस्तान के साथ हैं वो मुल्क के गद्दार हैं और वो बीजेपी को वोट देने के लिए सोचते हैं। ईश्वरप्पा ने मजीद कहा कि उनके असेंबली हल्के में 50,000 से ज़्यादा मुसलमान हैं। आज तक उन्होंने किसी मुसलमान के पास जाकर वोट के लिए सलाम तक नहीं किया और ईश्वरप्पा के इस मुतनाज़ बयान की कांग्रेस लीडर सिद्धरामैया और दीगर ने सख्त मजम्मत की है। ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ವೋಟ್ ಇದೆ, ಒಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಹೋಗಿ ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ವೋಟ್ ಗೇಟ್ ಇಲ್ಲ। 47,000 ವೋಟ್ ಲೀಡರ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು। ಯಾಕೆ ಅಂಶ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ। ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಇದಾನೋ ಅವನು ಬಿಜೆಪಿ ವೋಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಯಾರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪರ ಇದ್ದಾರೋ ರಾಷ್ಟ್ರದ್ರೋಹಿಗಳಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರು ಬಿಜೆಪಿ ವೋಟ್ ಕೊಡೋ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ।
कर्नाटक के रायचूर में मुख्तलिफ अवामी मसाइल को लेकर कांग्रेस पार्टी लीडर और कारकुनों ने एहतजाज मुजाहरा किया। एहतजाज से पहले शहर के अम्बेडकर चौक से डीसी ऑफिस तक एक रैली भी निकाली गई। एहतजाजी प्रोग्राम में जिले के मुख्तलिफ इलाकों के पार्टी लीडर और कारकुनों ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। इस मौके पर एहतजाजियों ने मरकजी और रियासती हुकूमत के खिलाफ नारे बुलंद किए। एहतजाज में रियासत की बीजेपी हुकूमत पर हर जगह बदनज़मी बदहाली फैलाने का भी इल्ज़ाम लगाया गया। एहतजाज में मरकजी और रियासती हुकूमत पर सैलाब मुतासिरीन और खुश्क साली से परेशान किसानों को राहत पहुंचाने में नाकामी का भी इल्जाम लगाया गया। आसाम में हुए एनआरसी के बाद अब पूरे मुल्क में बहस का सिलसिला जारी है। बेंगलुरु में साबिक मरकजी वजीर के रहमान खान ने कहा कि इस पूरे मामले में अवाम को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बल्कि बेदार रहने की ज्यादा जरूरत है। खास रिपोर्ट। आसाम में एनआरसी के निफाज के बाद मुल्क में मरकजी हुकूमत अब एनआरआईसी को नाफिज कर रही है। इस अहम मौजू पर बेंगलुरु में मुज़ाकरे का इनेकाद अमल में आया। आसाम के एडवोकेट अमन वदूद ने कहा कि एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन की फहरिस्त आसाम में जारी हुई है। इस फहरिस्त के मंजर आम पर आने के बाद कई खदशात दूर हो चुके हैं, लिहाजा एनआरसी या फिर एनआरआईसी से डरने की कतई जरूरत नहीं है। साबिक मरकजी वजीर के रहमान खान ने कहा कि इस मामले में मस्जिद कमेटियां अपने अपने इलाकों में बेदारी पैदा करें। ने कहा कि हर मस्जिद में जैसा हम शादी का दफ्तर रखते हैं वैसा एक एनआरसी का दफ्तर होना चाहिए हर मस्जिद में। लोकल आदमी हर आदमी को वो काम करना चाहिए। इसमें तंजीमें आगे आकर इसको इस तरह से हम प्रिपेयर हो सकते हैं आने वाले चैलेंज। मस्जिद क्या करें कि एक रजिस्टर रखें, जैसा कि क्रिश्चियंस कम्युनिटी में होता है, हर चर्च में एक रजिस्टर रहता है। देखिए वहाँ पे एक नैरेटिव चल रहा था कि बहुत सारे फॉरेनर्स हैं। अभी जो लिस्ट आया है, सुप्रीम कोर्ट ने उनको मॉनिटर किया था और स्टेट गवर्नमेंट ने उनको एग्जीक्यूट किया, तो अभी सिर्फ 1.9 मिलियन लोग एक्सक्लूड है। और ये अभी अपरेंट हो गए कि बहुत सारे लोग जो है वो इंडियन हैं उसमें, तो उनको एक मौका मिलेगा फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल जाने का, अपील करने के लिए। नॉर्मल है, पीसफुल है। हाँ, जो लोग बाहर है वो थोड़ा उनका एंजाइटी है कि आगे क्या होगा। इजलास में कहा गया कि अवाम एनआरसी और एनआरआईसी के दरमियान मौजूद फर्क को समझे। अब तक सिर्फ आसाम में एनआरसी नाफिज किया गया है, जबकि मुल्क की तमाम रियासतों में आइंदा साल से एनआरआईसी की कार्रवाई शुरू होगी। इसके तहत हुकूमत के कारिंदे घर घर पहुंचकर मालूमात हासिल करेंगे। एनआरसी सिर्फ आसाम के लिए है, एनआरआईसी हिंदुस्तान के लिए आएगा। एनआरसी अलग है, एनआरआईसी अलग है। एनआरसी में आपको जाके एनरोलमेंट कराना पड़ेगा सेंटर्स में और आपकी सिटीजनशिप प्रूव करनी पड़ेगी। एनआरआईसी में डोर टू डोर आपको एनरोलमेंट होगा, एन्यूमरेशन डोर टू डोर होगा। और मेन मकसद ये जो मीटिंग का था, अवेयरनेस के साथ जो है हमको वी वांट टू ड्राइव मोर वॉलंटियर्स इनटू दिस। अब ये जो चीज़ में जो है वॉलंटियर्स, एजुकेटेड वॉलंटियर्स की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज देर इज़ ए नीड ऑफ डूइंग ए डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है। डॉक्यूमेंटेशन को बहुत सारे एरर्स होते हैं, उसको रेक्टिफाई करने का काम होता है। आइंदा साल अप्रैल से सितंबर तक एनआरआईसी के लिए मुल्क भर में सर्वे होने वाला है और इसी के पेश नज़र महरोज खान और उनकी टीम ने बेंगलुरु के बाद दीगर शहरों में भी बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद करने का फैसला किया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हलूर की रिपोर्ट। दानिश्वरों और उलमाए कराम का कहना है कि आज मुसलमानों को आमाल नब्वत के साथ साथ इखलाक नब्वत को भी अपनाने की बेहद ज़रूरत है, तभी बरादरान वतन के साथ खुशगवार ताल्लुकात कायम होंगे। मजलिस तामीर मिल्लत के जलसे से खिताब करते हुए मुकर्रीर ने कहा कि मुसलमानों को खौफजदा होने के बजाय हालात से मुकाबला करने की हिकमत अमली बनानी चाहिए। गुलबर्गा में मजलिस तामीर मिल्लत ने जलसे का इनेकाद किया। जलसे में उलमा कराम और दानिशवरों ने शिरकत की। इस मौके पर उलमा कराम ने हिंदुस्तानी मुसलमानों को तशवीश में मुब्तला होने के बजाय हकीकत पसंदी को इख्तियार करने का मशवरा दिया। जलसे से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने मुसलमानों को सबसे ज्यादा तवज्जो असरी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम पर मरकूज करने पर जोर दिया। इस समाज में गैर मुस्लिम भाइयों से समाजी ताल्लुकात अच्छे कीजिए
आमाल नबूवत के साथ साथ अखलाक नबूवत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए, उसके बगैर हम इस उम्मत की नुमाइंदगी नहीं कर सकते। और तीसरी बात, इस उम्मत को आका के वास्ते मुत्तहिद रहने दीजिए, इस उम्मत के इज्तिमाई प्लेटफॉर्म को इख्तिलाफ के लिए इस्तेमाल न होने दीजिए। तलाक़ सलासा बिल, UAPA तरमीमी बिल, दफ़ा 370 की मनसूखी, NRC और NPR जैसे हसास मौज़ूआत पर भी इजलास में रोशनी डाली गई। इशू को उसके बाद NPR एक आने वाला है जो 1 अप्रैल 2020 से 30 सितंबर 2020 तक चलेगा। उसके लिए मैं आप लोगों से अदबन गुजारिश करता हूं कि कानून को हाथ में ना लेते हुए हमारे जो भी डॉक्यूमेंट हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है। जहां कहीं भी गलतियां हुए हैं, आइडेंटिटी कार्ड, राशन कार्ड, स्कूल सर्टिफिकेट और आपके पासपोर्ट वगैरह में, ड्राइविंग लाइसेंस में, जहाँ कहीं भी नाम में छोटे मोटे मिस्टेक हो उसको दुरुस्त कर लीजिए। ये डर के नहीं, आने वाले दिनों में नए नए कानून आ सकते हैं। 2010 तक हमको अक़लियत और सेक्युलर ये अल्फाज सुनने को मिलते थे, लेकिन 2010 के बाद से कम होते होते 2014 के बाद से सेक्युलरिज्म का वर्ड ख़त्म हो गया। और मैं ये भी कहूँ तो बेजा न होगा कि सेक्युलर का वर्ड और सेक्युलरिज्म कहने के लिए सिर्फ हम ही बाकी रहे। जलसे में मुसलमानों के तई मरकजी हुकूमत पर अक़लियत मुखालिफ मौक़िफ़ अपनाने का इल्ज़ाम आयद किया गया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट। मुस्लिम ख़वातीन का मानना है कि हुकूमत ने तलाक़ सलासा कानून मुस्लिम ख़वातीन से हमदर्दी की आड़ में मुस्लिम मर्दों को जेल भेजने के लिए बनाया है। आलिमा ख़वातीन का कहना है कि हुकूमत वक्त के कानून बनाने से शरीयत के अहकामात में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कानून शरीयत अपनी जगह बरकरार रहेगा, कानून शरीयत अपनी जगह बरकरार रहेगा। गुलबर्गा में एक सेमिनार से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि 3 तलाक के वाक़ हो जाने के बावजूद उसे तस्लीम न करना गोया गुनाह कबीरा है। ख़वातीन के इस सेमिनार में कई अहम माशरती मौज़ूआत पर भी तफसीली रोशनी डाली गई। ऑब्जेक्शन ये है कि तलाक़ सलासा को ख़तई तौर पे तीसरी तलाक़ ना होने का जो हुक्म दिया जा रहा है, हमारे इस्लाम में ये है, कुरान और सुन्नत की रोशनी में ये है कि तीसरी तलाक़ हो जाएगी अगर हम उस क़ानून के तहत उस तलाक़ को ना माने, अगर उसको नहीं करार देंगे तो उसके बाद रहना हमारे लिए गुनाह शामिल हो जाएगा। इक़दामात हम कर सकते हैं क्योंकि जो है हमारे जो आजकल की जो नौजवान नस्ल है उसकी जो है तरबियत सही होना चाहिए, उनकी काउंसलिंग होना चाहिए। शादी से पहले जो है काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ा किरदार माँ का होता है, यानी माँ जो है जिस तरीक़े से इस्लामी तरीक़े से अगर वो ज़िंदगी गुजारेगी तो वो बच्चा जो है आगे चलकर एक बेहतरीन समाजी शहरी बन सकता है, वो दुनिया व आखिरत उसकी कामयाबी